Yes, we are live. Namaste everyone. My name is Vaishali Shah. I welcome each one of you to our session on Hindu culture and lifestyle. As usual, we have come up with this different series. I call this series as a master series because now onwards and for many episodes, we are going to interview people who actually practice this knowledge. What I mean by that is someone who has studied from Vedic Patshalas, someone who has been practicing any part of the rituals which are taught there, or someone who is teaching these scriptures directly to the students in some of the universities, or they are Kathakar who actually narrate different stories and the uh, our itihas like Ramayana and Mahabharata and Srimad Bhagavatam or any other Purana or Bhagavad Gita to the masses. And that is the reason I'm going to call this as a master series. And I'm so glad that today we have somebody who runs an ashram in Indore, and at the same time he practices and he teaches and he performs various puja and uh, havan based on Sri Yantra. So I request Sri Umesh ji to join us. Sri Umesh ji, namaste, Jai Shri Ambe, kaise hain aap? नमस्ते। जय जय अम्बे जी। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया. So before we start our session, Swami ji, I would like you to say one prayer क्योंकि हमेशा हम एक prayer से ही शुरू करते हैं. जी। Then I'll repeat your introduction to the audience. ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। श्री परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः। श्री परात्पर गुरु चरण पादुकाभ्यां नमः। ध्यायेत् कामेश्वराङ्कस्थाम् गुरुविन्दमणिप्रभाम् शोणाम्बरशृगालेपाम् शरवाङ्गीण विभूषिताम् सौन्दर्यवधिं शेषु चापपाशाङ्कुशोज्ज्वलाम् स्वभावेरमणाद्यापि सेव्यां सर्वनियामिकाम् सच्चिदानन्दवपुषम् सदयापां बिभ्रमाम् सर्वलोकैकजननीम् स्मेरास्यां ललिताम्बिकाम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्माहमस्मि ब्रह्माहमस्मि ब्रह्माहमस्मि। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवम् सिद्धौगम्बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् धीराण्यष्टचतुष्टषष्टिनवकं वीरावली पञ्चकम् श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्देर्गुरोर्मण्डलम् वन्देर्गुरोर्मण्डलम्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमद्राजराजेश्वर्यै नमः। सभी को सादर जय जय अम्बे। जय जय अम्बे. स्वामी जी, आपका मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लूं जी so that हमारे ऑडियंस को आपके बारे में थोड़ा बहुत शुरुआत में समझ में आए. Sri Sri Vidyadham Ashram is managed by him. The ashram follows the Vedic Dharma and works towards promoting it. He is an expert in Sri Vidya Sadhana, Sri Yantra Mahapuja, and other Vedic rituals. His ashram is based in Indore. It is in Madhya Pradesh, very close to Mahakal Ujjain temple.
And of course, I know him personally. I've met him in Mumbai when I was in India in last, I think last year or last to last year we met. Um, the reason now I just want my audience to understand that I call this series as a master series, as I mentioned that we are going to have people from different sampradayas, different sect, different school of thoughts. Those foolish people who think that we cannot have, why we have so many sampradayas and we have so many gurus and so many different ideas, but they should understand that Bharat used to start from Afghanistan to Bali and Java and Sumatra and even Sri Lanka. So the size of the country was huge, and of course the huge population. And when we don't wear the same clothes every day, we don't wear we don't eat same food, we don't stay in the same locality forever, we don't have our fingers which are the same in size. So there is nothing which is so-called uniform. There is nothing like one. So there is nothing like one god or one scripture. It doesn't work when the country is full of scholars and full of rishis, and they have and we are there for thousands of years. Obviously we have created some series of knowledge, series of scriptures, and thousands of rishis and gurus have come on this land and they have shared different school of thoughts. But one thing we must understand, that we have never fought among ourselves just because we are follower of one particular ashram or one particular god. Like for example, devotees of Shiva would never fight with devotees of Krishna or Vishnu. Similarly, this series, I want to emphasize that we all have different ideas, different ideology, different practices, different rituals, but then the essence, the core essence of Sanatan Dharma remains the same. The whole message and the whole idea of country, the idea of religion, idea of Parabrahma, Paramatma, Bhagwan, जो भी बोल दो वो सारा सिमिलर है और सेम है या फिर बहुत ही मिलता जुलता है. So in this series now, Ganesh ji, who's practicing who's basically sharing the knowledge of Sri Yantra, and he's going to tell us how scientific Sri Yantra is, what is the purpose of practicing that, how and all that, we are going to talk to him. So before we start, Swamiji, I would like you to tell us something about your background. मतलब आप कहाँ थे, कहाँ से इस फील्ड पे आए, आपने संन्यास क्यों लिया? तो प्लीज आप थोड़ा बहुत बताइए अपने बारे में. जी वैशाली जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने कहा कि अभी संन्यास क्यों लिया, तो मैंने अभी संन्यास नहीं लिया है। ये इन्फॉर्मेशन अभी आपके पास थी नहीं। एक ब्रह्मचर्य जीवन को अभी जी रहा हूँ, संन्यास की मेरी दीक्षा नहीं हुई है। और एक मेरी छोटी सी यात्रा है, इस आध्यात्मिक यात्रा, जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। मैं 14 साल का था तब विद्याधाम आश्रम में आ गया था। हमारे पूज्य श्री भगवान श्री श्री विद्याधाम पीठाधीश्वर इंदौर में हमारा एक बहुत सुंदर आश्रम है, श्री श्री विद्याधाम। यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेदी माध्यांदिनी शाखायाम अंतर्गत वेद कर्मकांड आदि की दीक्षा दी जाती है, जिसमें गीता है, भागवत है, यज्ञ है, जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं, संस्कार हैं वैदिक परंपरा के, सत्य सनातन वैदिक परंपरा को हम आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ब्राह्मण आचार्य तैयार कर रहे हैं। मंदिर में बहुत सारे मंदिर हैं, गणपति मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है, शिव परिवार है, यज्ञशाला है, गौशाला की भी यहाँ पर सेवा है। 300 गौ माताओं की यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सेवा की जा रही है। इसी के साथ में जो प्रधान हमारे यहाँ पर मंदिर है वो है ललिता माँ पराम्बा त्रिपुरा सुंदरी का टेम्पल है, जिसमें ललिता माँ पराम्बा विराजमान है। मैं जब यहाँ पर आया बहुत छोटा था, और प्रारंभ से ही जब मैं एक अपने परिवार में था, माता पिता के पास था, एक सागर जिले के
छोटे से गांव सहुआ में मेरा जन्म हुआ। प्रारंभ से ही कुछ ऐसे संस्कार थे कि भगवान के पूजा पाठ में रुचि थी, और जब थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ समझ में आया, तो मन में एक निश्चय हुआ कि संस्कृत पढ़ना है। लेकिन ये नहीं जानता था कि संस्कृत पढ़ना मतलब संस्कृत में इतना सारा कुछ। संस्कृत पढ़ने से सिर्फ ये जानता था कि प्रवचन देना उस समय। लेकिन जब फिर यहाँ पे इंदौर आया और इस आश्रम में हमने एडमिशन लिया, तो फिर मुझे पता चला कि संस्कृत में कितनी सारी चीजें होती हैं, वेद हैं, पुराण हैं, कर्मकांड है, बहुत सारा कुछ है। एक जो हमारे आश्रम की भगवान की परंपरा रही, वो वैदिक परंपरा रही। उसी परंपरागत हमने यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद के माध्यम से वेद पढ़ा, कर्मकांड को सीखा, और उसी के साथ में माँ पराम्बा की साधना में हम अनवरत निष्ठा से माँ की सेवा में रहे। और सर्वप्रथम हमें भगवान ने यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ सिखाया, और दुर्गा सप्तशती के पाठ के माध्यम से ही माँ की स्तुति करना हमको सिखाया। और ऐसा कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती कलिकाल में सबसे बड़ा एक आशीर्वादित ग्रंथ है, जो पूज्य श्री भगवान कहते थे हमारे पूज्य। संसार में जितने भी कष्ट हैं उनको दूर करने के लिए, मिटाने के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ साधन है तो वो दुर्गा सप्तशती है। कलो सर्वेष्ठ साधनम। तो इस प्रकार से मेरा एक यहाँ का जो यात्रा है वो इस प्रकार रहा है कि आज मुझे यहाँ पर 20 इयर्स रनिंग, और मैंने जो भी कर्मकांड है, वेद है, गीता है, इन सब का अध्ययन किया। इसी के साथ में माँ की साधना में विशेष रूप से मेरी निष्ठा रही। और ललिता माँ पराम्बा जो विराजमान है, उनका विग्रह रूप श्री यंत्र है, जिसको हम राज यंत्र, मेरु श्री यंत्र कहते हैं। उसकी साधना में पिछले काफी कुछ वर्षों से मैं अर्चन के माध्यम से, पूजा के माध्यम से इस साधना को कर रहा हूँ। श्रीयंत्र माँ पराम्बा का विग्रह रूप है, अखिल ब्रह्मांड का स्वरूप है। श्रीयंत्र माँ का एक पूजा यंत्र है। इस यंत्र की पूजा करने मात्र से संसार के सभी देवी देवताओं की, यहाँ तक कि पृथ्वी के कण कण की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। श्रीयंत्र वो राजयंत्र कहा गया। ललिता माँ पराम्बा का जो श्रीयंत्र है उसे राजयंत्र कहा गया। राजयंत्र क्यों कहा गया? जितने भी यंत्र हैं, हर देवी देवता का अपना एक यंत्र होता है, लेकिन श्रीयंत्र सर्वशिरोमणि ललिता माँ पराम्बा का विग्रह रूप है। जितने भी यंत्र हैं, जितने भी देवताओं के यंत्र हैं, उन सभी यंत्रों का वास श्री यंत्र में माना जाता है, होता ही है। और जब हम श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो सभी देवी देवताओं की पूजा करने का फल हमें प्राप्त होता है। जिस तरह से हमारे शरीर में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, जितने भी चक्र हैं, उन्हीं चक्रों के माध्यम से हम एक ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं। उन्हीं चक्रों का पूजन श्रीयंत्र में भी होता है। श्रीयंत्र में जो पूजा का क्रम है, यहाँ पर हम कहेंगे कि गोपनीय साधना है, गोपनीय पूजा का अंग है। सब बातें हम यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन एक सूक्ष्म रूप में जो हमें एक गुरु परंपरा से आम लोगों के लिए करने के लिए बताया गया है, उसके लिए मैं यहाँ पर अपनी बात को कहना चाहूंगा। तो पहले एक बहुत स्वामी जी, सबसे पहले आप पहले ये बताइए कि श्री यंत्र क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे जितने भी हमारे सिंबॉलिक रूप में जो शक्तियां हैं
या फिर हमारे जो सिंबल्स है, ओम है कि स्वस्तिक है, वो सभी चीज़ का कुछ ना कुछ डीप मीनिंग है। तो वैसे ही श्री यंत्र का पहले तो श्री यंत्र क्या है वो आप बताइए? जो जनरल पब्लिक जिसने कभी श्री यंत्र के बारे में जाना ही नहीं हो, जानता ही नहीं हो, उस लैंग्वेज में आप मतलब उस सिंपल तरीके से आप बताइए कि श्री यंत्र क्या है? फिर हम उसके दूसरे एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे। प्रायः करके आज आम लोगों को जो पता है वो श्रीयंत्र का जब नाम सुनते हैं तो वो जानते हैं कि सिर्फ श्रीयंत्र का मतलब हुआ लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी प्राप्ति का साधन। लेकिन ये बहुत एक अलग अंग है लक्ष्मी का। लेकिन मेरु श्रीयंत्र क्या है? जिस श्रीयंत्र की चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर हैं। श्रीयंत्र ललिता माँ पराम्बा का विग्रह रूप है। जैसा कि मैं अभी पहले भी बता रहा था कि श्रीयंत्र को राज यंत्र कहा गया, राज श्रोमणी यंत्र। तो राज श्रोमणी यंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि जितने भी देवी देवताओं के यंत्र होते हैं, उन सभी देवी देवताओं के यंत्रों का वास इस यंत्र में होता है। इसलिए इसको राज यंत्र कहा गया, राज श्रोमणी यंत्र कहा गया। अब इसकी पूजा करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है? पूजा श्रीयंत्र एक अपनी खुद की आत्मा की साधना है। खुद की पूजा है श्रीयंत्र के माध्यम से। अपनी आत्मा को जानना, खुद को जानना, खुद के आनंद को पाना, अध्यात्म की एक सर्वोच्च स्थिति को पाना। श्रीयंत्र सर्वांगीण सभी शक्तियों को, जितनी भी दैवी शक्तियां हैं, उन सभी शक्तियों से हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ सिर्फ इतना नहीं है कि पूजा श्रीयंत्र की पूजा करने मात्र से हमारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। मनोवांछित कामनाएं तो पूर्ण होना ही है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो है जो हमें मुक्ति का साधन है। हम इस संसार में आए हैं तो हम मुक्त कैसे हो, उसके लिए जो गुह्य से गुह्य साधना है वो श्रीयंत्र है। श्रीयंत्र की साधना है, ललिता माँ पराम्बा श्री विद्या की साधना है। उसी में एक सूत्र आया है कि सा विद्या विमुक्त है, जो हमें मुक्त करती है वो श्री विद्या है। और श्री विद्या की साधना का ही एक महत्वपूर्ण अंग है श्रीयंत्र। और श्रीयंत्र की साधना करते हैं जब हम, तो संसार के जितने भी आपके संकल्प हैं उनकी पूर्णता के लिए भगवती आपको मार्ग प्रशस्त करती है। मार्ग किस तरह से प्रशस्त होता है? मैं ये नहीं कहता कि यदि आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं तो आपने आज पूजा की और आप सोचें कि जिस कामना से हमने पूजा की है वो कल हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब आप सतत उस माँ की चरणों में साधना में रहते हैं तो आपको एक माँ मार्ग प्रशस्त करती है। आप यश की कामना करते हैं तो किस मार्ग से आपको यश मिलेगा? माँ आपको वो वह मार्ग देगी, उस पे चलना आपका काम है। आपको ज्ञान की आवश्यकता है, माँ आपको ज्ञान का मार्ग देगी। आपको भक्ति की आवश्यकता है, माँ आपको भक्ति का मार्ग देगी। आप अपने जीवन में सुख संपदा, ऐश्वर्य चाहते हैं, माँ आपको वो मार्ग देगी जिस मार्ग पर चलकर आप ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकेंगे और इस संसार को भोग सकेंगे। लेकिन मूल में जो ये साधना है वो परम आनंद को पाने की साधना है। अपनी आत्मा से जुड़ना, खुद से जुड़ना, जहाँ पर निष्काम भाव से उस साधना को हम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जब निष्काम भाव से हम माँ की सेवा साधना करते हैं श्रीयंत्र की पूजा के माध्यम से, तो दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है कि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो हम अपने जीवन में कामना करते हैं वो हमें प्राप्त होने लग जाता है। तो जब हम जो त्रिलोकों की अधिष्ठात्री है, जो दृष्टि मात्र से संसार का पालन पोषण कर रही है, वह क्या देने में समर्थ नहीं है। जब हम उसके शरण में जाते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं, पूर्ण रूप से सरेंडर कर देते हैं, तो वहाँ पर माँ आपकी जितनी मनोवांछित कामनाएं होती हैं उनको माँ निश्चित ही पूर्ण करती है। लेकिन वहाँ पर हमें पूर्ण रूप से, पूर्ण श्रद्धा से, निष्ठा से
और आपके अंदर विश्वास पूर्ण रूप से होना चाहिए, और उसके माध्यम से जब आप माँ के चरणों में समर्पित होते हैं तो माँ आपको वो सब कुछ देने लग जाती है जिसकी आप अपने जीवन में कामना करते हैं। और इसके लिए बहुत ही श्रेष्ठ, सुगम, सरल साधन श्री यंत्र की पूजा है, भगवती के 1000 नामों के द्वारा, जिसको हम ललिता सहस्त्र नाम कहते हैं। श्री यंत्र को हम घर में रखते हैं। पूजन के लिए एक साधारणतया हमें पंचामृत से, शुद्ध जल से पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से स्नान करवा के चंदन है, कुमकुम है, अक्षत हैं, पुष्प हैं, दीपक प्रज्वलित करें, नैवेद्य लगाएं। इतना ही पूजन यदि आप घर में करते हैं श्री यंत्र का, तो आप थोड़े ही दिन में देखेंगे कि आपके घर की, परिवार की एक जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो बहुत सकारात्मक होने लगी है, पॉजिटिव। मन की स्थिति, विचारों की स्थिति बदलने लगी है। थोड़े ही दिन में आपको ये प्रभाव दिखने लग जाएंगे। लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है कि श्री यंत्र सिद्धांतिक रूप से सही बना हो, ये बहुत जरूरी है। तो जो श्री यंत्र के सही जानकार हैं, जिनको पता है कि श्री यंत्र किस तरह से सही होता है, तो श्री यंत्र को हमें लेकर आना चाहिए और उसको सिद्ध करवा के पूजन आदि उसकी जो विधि है उसका संपूर्ण विधान करके ही घर में हमें उसको स्थापित करना चाहिए। नो बट श्री आपने यंत्र जैसे का बताया श्री स्वामी यंत्र जी का जी 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 श्री यंत्र का एक पूजा का विधान यहाँ तक होता है, और उसके बाद जो सेकंड क्रम आता है वो अर्चन का आता है कि यदि हम पूजन तो एक डेली बेसिक रूप से करते ही हैं, करना ही है, लेकिन इसके साथ में यदि हम नित्य भगवती की अर्चना भी करते हैं ललिता सहस्त्र नाम से, तो माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जब माँ के हम 1000 नामों से माँ का अर्चन करते हैं तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आप पर कृपा करती हैं। जी वैशाली जी। मेरा एक्चुअली यही क्वेश्चन था कि आपने उसकी पूजा विधि तो बता दी, लेकिन वो श्री यंत्र में क्या है, मतलब उसके जो मैंने तो श्री यंत्र देखा है, मुझे चाहिए कि आप उसका जो डिजाइन है उसका मतलब आप हमारे ऑडियंस को समझाएं कि उसमें कौन सी चीज कहाँ पे क्यों क्या कहते हैं विद्यमान होती है, बिकॉज दैट विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड कि ये कितना साइंटिफिक है और ये हमारे नेचर को बहुत अलाइन करता है, बिकॉज फाइनली हमारे जितने भी वैदिक रिचुअल्स है जो आइदर यज्ञ के द्वारा हो या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, लाइक जैसे यंत्र, श्री यंत्र जो है वो एक माध्यम है ना, इट्स अ मीडियम, इट्स अ इट्स अ इट्स अ व्हाट यू कॉल, इट्स एन ऑब्जेक्ट जहां से हम एनवायरमेंट से पॉजिटिव वाइब्स कलेक्ट करते हैं और वो हमारे घर पे रिफ्लेक्ट करता है। तो प्लीज आप श्री यंत्र का जो स्ट्रक्चर है ना वो आप समझाइए थोड़ा। श्री यंत्र में यदि हम उसको स्ट्रक्चर के उससे हम समझना चाहते हैं, तो जैसे मैंने चक्रों के बारे में आपको बताया था कि शरीर से एक श्री यंत्र का संबंध है, इसी प्रकार से श्री यंत्र में बिंदु चक्र प्रधान है। बिंदु चक्र में ही जो सबसे ऊपर बिंदु होता है उसमें माँ भगवती, शाम्ब सदा, शिव विद्यमान होते हैं। उसके बाद त्रिकोण होते हैं, अष्टकोण होते हैं, अंतरदशार होता है, बहरदशार होता है, चतुर्दशार होता है, अष्टदल, षोडश दल, वृत्त, तीन भूपुर आदि ये पूरे श्रीयंत्र के कोणों का आधार मूल है। और इस यंत्र के कुल 43 कोण होते हैं, जो 28 मर्म स्थल बताए गए हैं। 24 संधियां होती हैं उसमें, जहां 3 रेखाएं मिलती हैं। इसी के माध्यम से संधि स्थल कहलाता है। त्रिकोणों में 4 त्रिकोण
ऊर्ध्वमुख और 5 त्रिकोण अधोमुख होते हैं। श्रीयंत्र में त्रिकोण ऊर्ध्वमुख हैं और शिव त्रिकोण कहलाते हैं तथा अधोमुख त्रिकोण शक्ति के माने जाते हैं। जो ऊपर की तरफ त्रिकोण होते हैं वो शिव का रूप होते हैं, जो अधोमुख नीचे की तरफ जो 3 त्रिकोण होते हैं वो शक्ति का रूप होते हैं। और इन्हीं जितने भी हमें त्रिकोणों की और अष्टदल कमल अंतरदशार बहिर्दशार जितने भी हम मूल त्रिकोणों की बात कर रहे हैं, प्रत्येक कोण में, हर कोण में एक भगवती का, शक्ति का निवास है, जिसे हम कहते हैं खड्गमाला। खड्गमाला में सभी 64 योगिनियों का विवरण किया गया है और उस खड्गमाला में जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, हर एक नाम के द्वारा उन मूल त्रिकोणों में अंतरदशार, बहिर्दशार, षोडश, अष्टदल जितने भी कोण हैं, कमल हैं, उन सभी में माँ भगवती का आवाहन होता है, शक्तियों का आवाहन होता है। इस सृष्टि का आधार क्या है? शक्ति है। शक्ति के बगैर हम संसार की किसी भी वस्तु की कल्पना नहीं कर सकते। यदि इसका हम दूसरा पक्ष, एक वैज्ञानिक पक्ष देखते हैं, तो वो इस तरह से देखेंगे कि संसार में आज जितना जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जड़ चेतन में कोई शक्ति है जो काम कर रही है। वह शक्ति क्या है? वह शक्ति हमारे अंदर जो पंचभूतों से शरीर बना हुआ है, संसार बना हुआ है, और वही शक्ति इस श्री यंत्र का रूप है जो आप कण कण में देख रहे हैं। और जब आप, मैंने पहले भी कहा था कि सृष्टि के कण कण में जितनी भी पवित्र नदियां हैं, पवित्र सागर हैं, पवित्र औषधियां हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सभी का निवास श्रीयंत्र में होता है। तो जब हम श्रीयंत्र की साधना को अंगीकार अपने जीवन में उतारते हैं, तो सृष्टि के कण कण की, यूनिवर्स की, नेचर की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमारे जीवन में काम करना प्रारंभ कर देती है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यदि हम कोणों की, यदि हम पूजा के विधान की बात में जाते हैं, तो वो एक गुह्य साधना का क्रम है। हम उस साधना के क्रम को यहाँ पर आप लोगों के सामने नहीं कह सकते। सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि इतने कोण हैं और इस प्रकार से उसका क्रम है, जो मैंने कि अभी पहले बताया है। लेकिन उसके उन कोणों का, प्रत्येक चक्र का पूजन का जो क्रम है वो गोपनीय है, उसको हम यहाँ पर नहीं कह सकते, क्योंकि जो ये श्री विद्या साधना है, ललिता माँ पराम्बा की श्रीयंत्र की साधना है, एक प्रकार से गोपनीय साधना है। ये एक इसका एक पक्ष है कि हमें कितनी बात समाज में आम लोगों से करना है, हम उतनी ही बात इस विषय में कर सकते हैं। जो गुह्य साधना है, फिर उसके लिए हम उस साधना को भी मैं आपको एक नाम बता देता हूँ। उस साधना को हम क्या कहते हैं? उसका एक चक्रार्चन होता है और एक आवरण पूजा होती है श्रीयंत्र। जी, मैं अभी श्री यंत्र का वो जो उसका जो पिक्चर है वो देख रही थी जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर. So there are many triangles which are there in the circle, and there are two circles in the outer side, and those circles are locked into one square, and that square has different, of course, the square has different four directions, and I think the four directions are about the way Swamiji said, it's about grasping the energy positive from the universe, and then as in once we continue worshipping it and continue doing pujan of the Sri Yantra, it creates that vibration into our house and also at the same time into our minds. And that is how Sri Yantra becomes instrumental in grasping the positive energy from the universe with the help of right mantra and the ingredients which Swamiji has explained. And that is how, and that is why we should have Sri Yantra in the house. स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैं साथ में वो उनका जो फोटो है वो देख रही थी और ट्राई कर रही थी कि आपने जो एक्सप्लेन किया है उसमें कितना बहुत कुछ
एक साइंटिफिक अप्रोच भी निकलता है, क्योंकि मैंने जब भी यज्ञ के बारे में स्टडी की थी, बिकॉज आई हैड गॉन टू वन राजसूय यज्ञ इन महाराष्ट्र, in in a place called in a Satara district. There was a place जहाँ पे मैं गई थी, और मैंने वो यज्ञ के जो इफेक्ट एनवायरनमेंट पे आते हैं उस रिसर्च के बारे में वहां से समझा था। तो इसीलिए आई हैव फुल फेथ इन यज्ञ। तो अब मुझे श्री यंत्र के बारे में समझना है कि वो श्री यंत्र घर पे रखने से और उसकी पूजा करने से हमारी लाइफ में उसके पॉजिटिव वाइब्स कैसे आते हैं। अच्छा, ये श्री यंत्र जो नॉनवेज खाते हैं, दारू पीते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं उसकी पूजा? ना ना, बिल्कुल नहीं। श्रीयंत्र की साधना में, भगवती की माँ पराम्बा की साधना में जो सबसे पहला अंग है वो पवित्रता का ही अंग है, कि आप इसका पवित्रता का आपको पूर्ण ध्यान रखना है। यदि आप इसका पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं और यदि श्रीयंत्र को घर में स्थापित रखते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो इसका आपको कोई फल नहीं मिलता। दूसरा एक अंग ये भी है कि साधना को, इस पूजा को हमें जब किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में, मार्ग में, जो सिद्ध मार्ग है उससे मिलती है, तो यह आपके जीवन में बहुत जल्दी एक कार्य करती है, आपको इसका फल मिलना प्रारंभ होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जहाँ पर इसको सीखते हैं इस साधना के लिए, वो सही तरह से जानकार हों इसके। दूसरा, जब हम इसको अपने घर में श्रीयंत्र को स्थापित करते हैं, साधना में जाते हैं, तो पवित्रता का पूर्ण ध्यान हमें रखना है। जिस प्रकार से आपने जिन बातों को अभी मुझसे पूछा है, तो बिल्कुल निषेध है इनका, तो हम तनिक भी इनके साथ में सेवन नहीं कर सकते। और इसकी जब हम और एक बहुत गुह्य साधना में जाते हैं, तो इसके बहुत सारे नियम हो जाते हैं, लेकिन साधारण प्रायः करके एक आम व्यक्ति के लिए जो है वो कुछ नियम हैं जिनको हमें पालन करना चाहिए, और एक बहुत ही सहज सरल रूप से इस साधना में प्रवेश करना चाहिए। बहुत ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि बहुत कठिन है या हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मैं एक छोटा-सा अपना एक माँ का जो अ, ज्ञान है वो कहना चाहूँगा, कि हम, एक माँ होती है जो हमें जन्म देती है, और एक माँ की जब हम गोद में होते हैं, इतने अबोध शिशु के रूप में होते हैं कि हमें भूख तो लगी है, लेकिन हमें इतना भी बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है कि माँ का दुग्धपान कैसे करना है। हुँ? हमें नहीं पता होता कि माँ का दुग्धपान कैसे करना है। फिर माँ खुद, हम कितनी बार माँ की गोद में हम होते हैं तो अपना सिर हम माँ के आँचल पे हाथ मारते हैं, सिर मारते हैं, लेकिन हमें स्तन को हाथ में लेकर मुँह में लेना ही नहीं आता है। फिर माँ खुद दुग्धपान कराती है। इतने अबोध शिशु हैं, बिल्कुल अज्ञानी हैं। जब हम इस भाव से उस माँ की शरण में जाते हैं, तो वहाँ पर माँ खुद हमें सँभालती है, और माँ खुद हमें अपनी उँगली पकड़कर चलना सिखाती है कि आपको मार्ग पर कैसे जाना है, उस साधना को कैसे करना है। और जब हम पूर्ण रूप से इतने अबोध शिशु बनकर माँ के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तो फिर ये जितने भी साधना का क्रम है, ये जीवन की जितने भी संकल्प हैं, क्रियाएँ हैं, वो सब माँ की हो गई, माँ सँभालती है। अपने आप वो सब मार्ग प्रशस्त होता जाता है। और जब जो माँ एक जन्म देने वाली माँ है, वो अपनी हिसाब से एक अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहती है उसकी खुशी के लिए। एक जो हमें माँ जन्म देती है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उस माँ की, जो माँ दृष्टि मात्र से ललिता माँ पराम्बा संसार का पालन पोषण कर रही हैं, जिनके सिंहासन के विष्णु, ब्रह्मा, शिव, ईशान खुद पाए हैं, और माँ खुद ब्रह्मा को सृष्टि रचने का, विष्णु को पालन करने का, शिव को संहार करने का आदेश करती हैं। वह माँ, उनके चरणों में जब हम समर्पित होते हैं, तो क्या कुछ संभव नहीं है जीवन में प्राप्त करना, अपनी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। यही माँ का जो विग्रह रूप श्रीयंत्र है, इसकी बहुत सी सरल साधना है, जो मैंने आपको अभी अवगत कराया है, बताया है। और इसके यदि हम बहुत ही
डीप में जाना चाहते हैं, इस साधना को समझना चाहते हैं, तो इस साधना के क्रम को प्रायः करके बहुत सारे लोगों ने, मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना के डाले हुए हैं, जो हम देखते हैं, लेकिन सिद्धांतिक रूप से बहुत सारा कुछ सही नहीं होता है। और इस साधना को ऐसे सीखा भी नहीं जाता है, किया भी नहीं जाता है। यह तो हमें गुरु की शरण में जाके एक गुरु परंपरागत जो है, वही हमें सीखना चाहिए और करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी जगह होता है कि साधना के लिए कोर्स करवा दिए जाते हैं, तो कोर्स से साधना हो जाती है, लेकिन ये कोर्स की साधना नहीं है। यह तो खुद को तपाने की, माँ की शरण में जाके गुरु के चरणों में बैठकर इस साधना को सीखा जा सकता है और किया जा सकता है। तो जो साधना के हम, यदि हम बहुत सूक्ष्म रूप में एक डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो हमें जो इसके सही जानकार हैं उनके पास जाके इसको सीखना चाहिए। प्रायः जो एक साधारण क्रम है श्रीयंत्र का, कि श्रीयंत्र कैसे बना है, कितने उसके कोण हैं, उनमें कौन-सी सिद्धियों का, कौन-सी शक्तियों का, योगिनियों का आवाहन होता है, वो मैंने आपको बताया ही है। और जब, जैसे कि आपने कहा कि एक इसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, तो सृष्टि के कण-कण का हर एक जितनी भी दैवी शक्तियाँ, शुभ शक्तियाँ हैं, उन सब का इसमें निवास है। तो जब हम इसकी पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो एक सरल सी बात है कि जितनी भी हमारे सृष्टि में, नेचर में, यूनिवर्स में शुभ शक्तियाँ हैं, सकारात्मक जितनी भी शक्तियाँ हैं, ऊर्जा है, वो हमारे जीवन में आना प्रारंभ कर देती है। और जब वो आना हमारे जीवन में प्रारंभ करती है, तो हमारा जीवन जो हमें कठिन लगता है कि हमारे हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे कार्य नहीं हो पा रहे। जितना भी जो भी हमें लगता है कि ये नहीं मिल रहा है, वो सब कुछ मिलना हमें प्रारंभ हो जाता है। हमारे मन के संकल्प पूर्ण होने लगते हैं। जीवन का हमें मार्ग प्रशस्त होने लगता है। अपने आप ही फिर वो माँ की कृपा होती है। स्वामी जी, तो ये श्री यंत्र में, ये श्री यंत्र का ओरिजिन कहाँ पे है? कौन से स्क्रिप्चर्स में, कहाँ पे इसका उद्गम हुआ है? और मैं एक चीज हमारे ऑडियंस को बताऊं कि यूएस के कहीं किसी स्टेट में वो लोग ने एक शायद सैटेलाइट इमेज से जब किसी एरिया का फोटो निकाला था, तो वहां पे उनको श्री यंत्र के इम्प्रिंट्स मिले हैं ऑन अ वेरी लार्ज लैंड। मतलब छोटा नहीं, बट किलोमीटर्स के हिसाब से अगर वो पूरा फैला हुआ था, बट उसका जो इमेज आ रहा था फ्रॉम द सैटेलाइट, यू नो व्हेन फ्रॉम दैट पॉइंट एंगल, तो वो एक श्री यंत्र का इमेज था। और ये बहुत टाइम तक नासा के डिस्कशन में भी रहा कि व्हाट इज द इम्पैक्ट एंड व्हाट इज द पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्राइंग, क्योंकि उनके लिए तो ये फक्त एक चित्र है या ड्राइंग है या एक इमेज है जो कुछ पावर देती है। अब उनकी वेस्टर्न संस्कृति में या फिर उनके मूवीज में और कहीं पे भी देखेंगे तो दे डू गिव एम्फेसाइज ऑन डिफरेंट सिंबल्स एंड डिफरेंट ड्राइंग्स, या फिर उनको वो एक नक्शा लगता है किसी ट्रेजर का, दे यूज दैट, बट आई हैव सीन दोज images very closely and they are very close to Sri Yantra. So I'm very sure that Sri Yantra must have impacted a lot of people in different parts of the world as well. तो स्वामी जी, आप उसका ओरिजिन बताइए और उसका मंत्र भी बताइए। हाँ, देखो वैशाली जी, आप कुछ क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं जिनके बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा। आप मंत्र पूछ रहे हैं, यहाँ पर मंत्र बताना तो संभव ही नहीं है। हाँ, तो मंत्रों के बारे में तो हम चर्चा नहीं करेंगे। साधारणतः मैंने बताया है कि ललिता सहस्त्र नाम से हम भगवती की अर्चना करें, उनके हाँ। चरणों में प्रणाम करें। लेकिन आपने जो कहा कि अभी नासा ने श्रीयंत्र को देखा है, बहुत सारी जगह श्रीयंत्र ऐसे प्राचीन समय मिला है, तो मैंने पहले ही कह दिया कि अखिल ब्रह्मांड का स्वरूप ही श्रीयंत्र है। अखिल ब्रह्मांड का स्वरूप ही श्रीयंत्र है। तो सृष्टि के कण-कण में हम ये भी कह सकते हैं कि सृष्टि के कण-कण में श्रीयंत्र समाया हुआ है और सृष्टि का कण-कण श्रीयंत्र में समाया हुआ है। तो आज प्राचीन समय की जो चीजें हम कहीं देख रहे हैं कि उनमें हमें श्रीयंत्र मिल रहा है, तो वो निश्चित ही है कि श्रीयंत्र मिलना ही है, वो विद्यमान ही है, पूर्ण रूप से पहले से ही वो विद्यमान है वहां पर। अब आज उसकी यदि कहीं खोज हो रही है या उसको कहीं इस तरह से हम देखते हैं मिलता है,
तो ये बहुत ही सरल और सुगम है उसको मिलना, क्योंकि इस संसार का जो उत्पत्ति का कारक है वो श्रीयंत्र ही है। और इसका आपने सबसे पहला कैसे? प्रश्न किया कि सबसे पहला इसका जो क्रम है वो कहाँ पर आया है, कहाँ से इसकी साधना का उद्गम हुआ है श्रीयंत्र का। तो श्रीयंत्र की जो साधना है ये जो ब्रह्म पुराण है उसके उत्तरार्ध में ये बहुत ही इसका अच्छे से श्री विद्या साधना का एक उपाख्यान है, ललिता उपाख्यान, उसमें पूर्ण रूप से इसका विवरण श्रीयंत्र का और श्रीयंत्र साधना का विवरण आया हुआ है। लेकिन इस पर फिर बहुत सारे विद्वानों ने ग्रंथों को भी लिखा है और इसका आज समाज में वो ग्रंथ हैं भी सही जिनको हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन प्रायः करके इसका जो मूल रूप है वो ब्रह्म पुराण के उत्तरार्ध में इसका मूल रूप से इसका पूर्ण ज्ञान, कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, कैसे हुआ है, पूर्ण रूप से इसका ज्ञान है। दूसरा इसमें एक और है जो शंकराचार्य जी हमारे परम पूज्य वंदनीय हमारे इस परंपरा के प्रवर्तक संवर्धक शंकराचार्य जी हुए। उन्होंने बाल्यकाल में ही सबसे पहला जो अपनी वाणी से माँ की स्तुति के माध्यम से स्तोत्र की रचना की उसको सौंदर्य लहरी कहते हैं। सौंदर्य लहरी में पूर्ण रूप से श्रीयंत्र का कैसे श्रीयंत्र बनता है और प्रत्येक बिंदु का, प्रत्येक कोण का, प्रत्येक रेखा का उसमें पूरा सिद्धांतिक रूप से विवरण दिया हुआ है कि कैसे ये बनता है, कैसे इसकी पूजा होती है, कैसे किस प्रकार से इसकी सिद्धि होती है। और उसमें प्रथम में 42 श्लोक में श्रीयंत्र के पूर्ण रूप से रचना क्रम का, पूजा क्रम का, सिद्धि क्रम का विवरण दिया हुआ है और उसके बाद के जो श्लोक हैं उसमें माँ के सौंदर्य का वर्णन है। लेकिन उसको भी पढ़ना और उसको समझना इतना सरल नहीं है। उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें गुरु की शरण में ही जाना होगा, गुरु के चरणों में ही बैठना होगा, जो इसके पूर्ण रूप से जानकारी रखते हैं, इसका अध्ययन रखते हैं। और यदि आप इसको पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से कोई भी पुस्तक लेके उसमें से पढ़कर कुछ भी करने लग जाते हैं या यूट्यूब पर कहीं पर भी देख के कुछ भी करने लग जाते हैं, तो आप ये समझिएगा कि आप जितना जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक राख में घी डालने के समान है, उसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, उससे आपको कुछ प्राप्त नहीं होना है जब तक आप गुरु की शरण में नहीं बैठेंगे। आपने मंत्र की बात कही कि हमें कुछ इसके मंत्र भी बताइए। प्रायः करके भगवती के 1000 नाम हैं जो हम सब जिसके अधिकारी हैं उनको सीख सकते हैं और उन नामों के माध्यम से माँ की स्तुति, गायन, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये सबके लिए सुलभ है और करना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। लेकिन फिर इसके जो पूजा क्रम का, साधना क्रम के इसके जो पार्ट हैं जिनको हम कहते हैं बालाक्षरी, पंचदशाक्षरी, षोडशाक्षरी, जो एक क्रम हैं, इन क्रमों को साधना में लाने के लिए हमें गुरु की शरण में ही जाना होगा। ये ना तो यहाँ पर हम ऐसे लाइव बता सकते हैं और ना इन पे हम चर्चा कर सकते हैं। जी, जी, आई अंडरस्टैंड। ये हमारे ऑडियंस के लिए बहुत समझने की ज़रूरत है कि यही दिस इज़ व्हाट वी यूज्ड टू लर्न इन वैदिक पाठशालास वेयर व्हिच वाज आवर ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम बिफोर ब्रिटिश spoiled and destroyed our pathshalas 150 years back. And when it comes to learning something, traditionally we were supposed to learn only from bona fide or a certified or someone who's qualified to teach something. And that is the reason today Swamiji clearly said that we can discuss some outer aspect of Sri Yantra, but if we want to learn something, then of course we have to go to a certified, the way we go to a certified trainer for every courses we learn in general, in universities and other coaching classes. Similarly, when we want to learn something about any particular vidya, we have to go to a certified guru who is entitled to teach you.
and who is following one particular say parampara or a tradition. स्वामी जी, फॉर एग्जाम्पल आप डू यू बिलोंग टू एनी ट्रेडिशन? जैसे हमारे यहाँ पे 5 आचार्य की खुद की संप्रदाय है, उसके अलावा बहुत सारे गणपत्य से लेके, मतलब गणपति के लेके शैव संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, तो इस तरह के बहुत सारे जो संप्रदाय है. डू यू बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर संप्रदाय और स्कूल ऑफ थॉट्स? इस साधना के लिए कोई पर्टिकुलर किसी संप्रदाय में जाने की जरूरत नहीं होती है. ये साधना को क्रम को करने के लिए तो शिवा शक्ति की साधना है. यदि हम इसको कहते हैं तो शैव संप्रदाय में जरूर हम इसको लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई विशेष रूप से किसी एक संप्रदाय में हम यदि प्रवेश कर गए हैं तो इस साधना को नहीं कर सकते, या पर्टिकुलर हमें उस संप्रदाय में जाना होगा, उसको वर्ण करना होगा, उसको उसमें दीक्षित होना होगा, तो ही हम इस साधना को सीख सकते हैं. ये तो किसी भी प्रकार से आप किसी भी संप्रदाय में हैं या उसमें जाके हम इस साधना को उसके माध्यम से हम सीख सकते हैं. लेकिन इस साधना का जो परंपरागत ज्ञान है वो श्री विद्या साधक जो हमारे गुरु हैं उनके पास ही होता है, और ये साधना का जो क्रम है ये शंकराचार्य परंपरा की साधना है. पूर्ण रूप से ये शंकराचार्य परंपरा की साधना है. और आज के समय में हम देखते हैं तो इस साधना को करवाने वाले, करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन बहुत सारा समाज एक ऐसा भी है जो इस साधना से, इस पूजा क्रम से बहुत दूर है, अछूता है. लेकिन जो इसके विषय में समझते हैं, जानते हैं, वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि इस साधना को हमें किस तरह से और कैसे करना है. और एक हम साधारण शब्दों में कहें तो लोग बहुत उत्सुक हैं साधना को जानने के लिए. जो थोड़ा सा भी इसके विषय में जानते हैं वो हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कोई अच्छा साधक मिले, कोई अच्छा इसका ज्ञानी जानकार मिले जो इस साधना के बारे में हमें पूर्ण रूप से बता सके कि ये साधना क्या है. लेकिन इस साधना को जानने के लिए, समझने के लिए पर्टिकुलर किसी संप्रदाय में जाने की जरूरत नहीं है, और ना इसका कोई ऐसा संप्रदाय है कि इस संप्रदाय के माध्यम से इस साधना को सीख सकते हैं. हमारे शंकराचार्य की एक परंपरा है. और हमारे जो पूज्य भगवान जी हुए, हमारे सदगुरु, जिन्होंने हमें सब कुछ इस ज्ञान को, इस साधना को करना सिखाया, बताया, तो भगवान ने तो प्रायः करके बहुत ही सरल रूप में हमें सब कुछ बता दिया, सिखा दिया. ऐसा भी नहीं है कि भगवान ने कोई बहुत स्पेशल किसी को दीक्षित किया हो या हमारे लिए विशेष रूप से कोई हमें इसकी दीक्षा दी हो, तो ऐसा भी नहीं है. भगवान ने बहुत सरल रूप से हमें, जैसे कहते हैं ना कि एक जब किसी को गुरु की कृपा होती है तो एक उनके मुख से एक अक्षर भी यदि निकल जाता है और वो हमारे कानों में यदि पड़ जाता है तो हमें वो संसार का सब कुछ ज्ञान मिलने लग जाता है. तो बस भगवान ने तो हमें जो कुछ भी सिखाया है, जो कुछ भी दिया है, उसके माध्यम से, क्योंकि भगवान ने, हमारे गुरु ने हमें जितने भी स्तोत्रों का, जितना भी हमें ज्ञान वैदिक परंपरा का और इस भगवती की साधना का जो भी दिया है, वो अपने आप में पूर्ण है, वो अपने आप में पूर्ण है. उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ बाकी हो. तो हमें किसी भी अलग से संप्रदाय में जाने की जरूरत नहीं रही, ना है. और जो भी साधना के क्रम में जाना चाहते हैं वो सहज रूप से श्री विद्या साधकों के पास, जो भी अच्छे गुरु हैं, अच्छे आचार्य हैं, उनके पास जाकर साधना को सीख सकते हैं. Swamiji, one thing you really have explained very well, that we have traditions and we have Shishya Parampara. But at the same time, if somebody wants to learn something, we don't have necessarily to go, we don't have to go to that particular ashram or particular guru and what do you call it? We give that credit or only learn from them. So I hope my audience would understand that this is another beauty of our culture, wherein we have various schools of thoughts, we have various sampradayas, gurus, and they have different ways of teaching us. Shankaracharya ji was our first guru, as in last few thousand years, because
If you see the history of India beyond 3,000 years, it is very different. But in last 2,500 years, a lot of things happened. Mahavir Swami came, Buddha came. At the same time, Shankaracharya ji came, who propagated and established Hindu or Vedic, actually not Hindu, but Vedic Dharma in, or maybe across India, because he established 4 mutt in 4 different directions, and that is how he propagated Vedic rituals and practices again. So that is a reason we consider him as an adi guru, which is means our first guru or first acharya in this acharya parampara, which largely people follow in India. Shankaracharya ji was the follower of Shiv. That is the reason he mostly created literature which was based or which was about Shiv and Parvati, or Shiv and Shakti. But after that, other 4 gurus were followers of Vishnu. That's why they were called Vaishnava Sampradayas. In future, we are going to have somebody who is going to describe this thing very much in detail. We are going to have somebody who will tell you that what is the difference between Shiv or Shaiv Sampradaya and Vaishnava Sampradaya. So Swamiji, one last question, because now we are almost closing to our time. Uh, uh, Close to our time. Swamiji, if somebody wants to buy Sri Yantra, so should somebody buy, मतलब किसी को खरीदना चाहिए या फिर किसी गुरु से ही लेना चाहिए? और श्री यंत्र को घर पे कहाँ रखना चाहिए, और उसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस वैसे आपने रिचुअल्स तो बता दिए, लेकिन उसको घर पे कैसे लाना है, कब लाना है, और उसको कहाँ रखना चाहिए, किससे लेना चाहिए, और भारत में, एटलीस्ट भारत में आप बताइए कि वो कहाँ कहाँ मिल सकता है? हाँ, आपने बहुत ही सही प्रश्न किया है वैशाली जी। श्रीयंत्र हमारे भारतवर्ष में, अभी तो बाहर भी बहुत सारे लोग इसको बेच रहे हैं, लेकिन सिद्धांतिक रूप से श्रीयंत्र सही नहीं मिलते हैं दुकानों पर, जो हम खरीदते हैं बिल्कुल भी सही नहीं मिलते हैं, जो मेरा एक अनुभव रहा है इसमें। तो श्रीयंत्र तो हमें अपने गुरु से ही लेना चाहिए, और यदि आप कहीं से खरीद के यदि लाते हैं तो अपने गुरु को वो दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि सही है या गलत है। यदि वो सही है तो उसके पूजा के क्रम में फिर जहाँ पर भी आपका समर्पण है वो पूजन करके उसको सिद्ध करके आपको दे देंगे, उसका पूजा का क्रम बता देंगे। तो फिर उसको घर में अपने पूजा के स्थान पर रखना है। पूजा का भी स्थान इसमें घर में यदि ईशान कोण हो तो बहुत ही अच्छा है। पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है, या पूर्व दिशा में हम इसको स्थापित करते हैं अपने मंदिर में, तो इसका फल अच्छा होता है और इसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में काम करती है। और प्रायः करके श्रीयंत्र लेने के लिए कोशिश यही होना चाहिए कि यदि गुरु के माध्यम से हमें श्रीयंत्र मिल जाता है तो यह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अधिकतर श्रीयंत्र जो बाहर हम खरीदने जाते हैं वो सही नहीं है, विधान के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं होते हैं। कुछ लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं श्रीयंत्र, लेकिन सब लोगों की वहाँ तक पहुँच नहीं है। और उन श्रीयंत्र में भी जो मेरा अनुभव है, बहुत सारी कुछ ना कुछ त्रुटियाँ होती ही हैं। तो जब तक हम सही गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से इसको नहीं लेते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसको हमें घर में स्थापित करना चाहिए। हम थोड़ा बीच में डिस्कनेक्टेड हो गए थे। स्वामी जी, आपने जो लास्ट में कहा वो मैंने नहीं सुना, प्लीज आप कहते हैं कि लास्ट 2 सेंटेंसेस आई मिस्ड। हाँ, मैंने कहाँ से लास्ट ले? में मैंने लास्ट में ये बताया कि श्रीयंत्र प्रायः जितना भी दुकानों पर हम जो खरीदने जाते हैं, वो सिद्धांतिक रूप से उन सभी श्रीयंत्रों में त्रुटियां हैं, सही नहीं बने हुए हैं। और जब सही श्रीयंत्र का हम पूजन नहीं करते हैं तो उसका बिल्कुल भी हमें फल नहीं मिलता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो सबसे पहले तो श्रीयंत्र सही होना चाहिए। तो जो सही हम सब आचार्य के किसी गुरु के संपर्क में आते हैं,
उनके पास जाते हैं तो हमें पता चलता है कि सही श्रीयंत्र कौन सा है, कि किस प्रकार से होना चाहिए। इतने जो भी हमने अभी पूरे कोणों का विवरण विवरण किया था उसमें, उनका सही ढंग से जब उसका सिद्धांतिक रूप से बना हुआ होता है, तो ही वह जीवन में फलदायी होता है और उसका हमें फल प्राप्त होता है। उस साधना का सकारात्मक ऊर्जा का क्रम हमारे जीवन में आना प्रारंभ होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम दुकानों से, कहीं से भी मन से श्रीयंत्र ना खरीदें और यदि आपको श्रीयंत्र घर में स्थापित करना है, तो जहाँ पर भी आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, उन गुरु के पास जाएँ, उनसे आप श्रीयंत्र लें या कहीं से खरीद के ले जाते हैं, तो उनको श्रीयंत्र आप अपना दिखाएँ कि ये श्रीयंत्र है और इसको हम घर में स्थापित करना चाहते हैं, तो वो आपका मार्गदर्शन करेंगे कि सही है या गलत है, इसको स्थापित करना है या नहीं करना है। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने अभी देखा किसी ने ये क्वेश्चन कहा था कि पूछा था कि कहाँ से हम ले सकते हैं। Now, one last point I want to describe to our audience because somebody has commented that this session is in Hindi, but I've tried to explain everything what Swamiji has said in English in a nutshell. So one more thing which I want to mention is that the Sri Yantra ka, the structure of Sri Yantra is very scientific and which is in a way that say we I don't know how to explain this, but the measurements, the size of the square and the round and the triangles are clearly defined. So you, for example, you cannot just have any size you want to, but the way it is described in the scriptures, you have to have that particular size, and that is the reason he is saying that you better buy from a bona fide or a guru, from a guru who knows the exact size and the structure of Sri Yantra, because otherwise there is no impact of that particular Sri Yantra which you have bought from unreliable sources. So I've tried to explain whatever Swamiji has said in a little bit in English, but Swamiji आपका आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे हर चीज में मैथमेटिक्स के जो मेजरमेंट्स थे ना, जो मतलब कि ट्राइंगल का मेजरमेंट हर जगह पे, वो चाहे वैदिक यज्ञ की पाठशाला हो या फिर हमारे यंत्र हो या फिर एक स्वस्तिक छोटा सा जो बहुत बेसिक है वो भी हो, लेकिन वो सब चीज में मेजरमेंट यानी उसका कैसा अ, होना चाहिए, माप क्या होना चाहिए, वो बहुत अच्छी तरह से दिखाया है. एंड दैट इज द रीजन इट इज इवन, दैट इज द रीजन व्हाई वी शुड एक्सेप्ट दैट दिस इज रियली साइंटिफिक. स्वामी जी, आपको लास्ट में कुछ मैसेज हमारे ऑडियंस को देना हो तो प्लीज कहिए. हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा और कि अभी हमने जितना भी इस यंत्र के ऊपर चर्चा किया है, ये बहुत ही छोटा-सा पार्ट है, बहुत ही बेसिक पार्ट है। इसके विषय में चर्चा करने के लिए बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा समय चाहिए। हम बहुत जल्दी वैशाली जी के साथ में सेकंड पार्ट में इसकी चर्चा करने के लिए आएँगे बहुत जल्दी। तो इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे, सो श्री यंत्र का जो प्रत्येक चक्र है, उसमें कौन-सी देवियों का स्थान है और उनकी पूजा करने से हमें कौन-सी सिद्धि की प्राप्ति होती है, इस पर चर्चा करेंगे। और ये भी जानेंगे कि श्रीयंत्र का कौन से धातु का श्रीयंत्र हमें घर में स्थापित करना चाहिए, कौन-सा सन्यासियों के लिए, कौन-सा गृहस्थ के लिए और कौन-सा ब्रह्मचारी के लिए अनिवार्य है श्रीयंत्र। इस पर भी हम चर्चा करेंगे और आज मेरा यही आप लोगों के लिए एक शुभ संदेश है कि आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आप को भगवान के साथ जोड़ें। भक्तिमय, ज्ञानमय आपका जीवन हो, यही माँ के चरणों में हम कामना करते हैं। जय जय अम्बे। थैंक यू स्वामी जी, जय जय अम्बे. और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए आपके इतने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा बहुत टाइम निकाला, क्योंकि मैं अब चाहती हूँ कि मैंने अब तक तो सारे जितने स्कॉलर्स हैं, इंडिक स्कॉलर्स जिसको कहते हैं आज मॉडर्न लैंग्वेज में, जो स्क्रिप्चर्स के थोड़े बहुत छोटे से पार्ट को स्टडी करके देन दे कम अप विद सम थियोरीज. So I was, you know, so far I've interviewed them. Now I want to understand from scholarly people like you, and that is the reason I've called this as a master series. तो I think हम लोग स्वामी जी आपको फिर कभी एक फिर से एक हमारा एक सेशन प्लान करके आप फिर हमें और डिटेल में श्री यंत्र के बारे में बताएंगे. तो तब तक आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय जय श्री अम्बे. जय जय अम्बे जी, नमस्ते। नमस्ते.